Yeah, hello everyone. It will be great if you all can turn on your cameras, so it will be good to see you. Your faces, good to interact with you guys. So and everyone, please mute yourself. And as I can read in this chat box that someone has doubt also. So yes, towards the end we will be taking. Yes, some of you have written, sir, I have a doubt. So yes, towards the end of the session, I'll be taking your queries and your doubts for sure. But for now, please mute yourself, everyone. Yeah, and turn on your cameras if possible. So today, see, we are already having this kind of sessions like from last 4 weeks. So today, what we'll do, we'll just revise what all we have gone through in this like past 4 week sessions, what we have already done. Rohit, please mute yourself. There's a lot of noise coming. Yeah, thank you. So I'll just start from the beginning things, what I've already told, and we'll cover all the things we have done in till our last week session. So just a second. So to begin with, we have like uh, 12 basic notes with us. So 12 notes कौन कौन से होते हैं जो हम basic 12 notes use करते हैं? C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B and C. ये 12 notes हमारे पास होते हैं. Basically 7 natural notes हैं. C, D, E, F, G, A, B, and we have sharps for every note. हर एक note का एक sharp होता है, but except your E and B we don't have sharps. So C, then C sharp, D, then D sharp, E, then there's no sharp, then F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, again no sharp, back to C. So उसमें अब हम एक term use करेंगे semitone, जो कि क्या होता है, the shortest distance between two notes, the smallest distance between two notes, it's known as your semitone. सो जैसे इफ आई एम एट सी, तो सबसे छोटा डिस्टेंस मूव करने का, सबसे छोटा यूनिट मूव करने के बाद मैं कहाँ पहुंचता हूँ? सी शार्प. दिस इज लाइक योर सेमीटोन. Again from C sharp, if I'm over semitone, I'll reach D. Semitone will take me to D sharp. Again at semitone from D sharp will take me to E. E से एक semitone चलेंगे F. F से एक semitone चलेंगे F sharp. F sharp से एक semitone चलेंगे G. G से एक semitone G sharp. So बिल्कुल nearest note तक जो move हो रहा है वो semitone है, सबसे छोटा unit. And when we move two semitones, it's a tone. So whenever you hear the term tone, you have to understand it like it's a two semitone things. So out of these 12 notes, we have also learned how we form our major scales, right? Let me show you that also. So we form major scales like tone, tone, semitone, tone, 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 semitone. This is how we form our major scales, right? So हमने एक C major scale बनाया था, यहाँ पे demonstrate किया था. C is the first note, and we can form major scale from each of the note. I can form one major scale from C, that will be C major scale. If I'll start from C sharp, it will be C sharp major scale. If I start from D, I'll end up with the D major scale. D sharp से start करेंगे तो क्या बन जाएगा? D sharp major scale. E से start करेंगे तो क्या बन जाएगा? E major scale. So my first note is C here, and first note में tone move करेंगे to get your second note. So C में tone move किया, I got my second note as D. So below 2 I have written as D as second note. फिर सेकंड में टोन मूव करेंगे टू गेट द थर्ड. तो डी में टोन चले ई, ई में फिर सेमीटोन चलेंगे टू गेट द फोर्थ, ई में सेमीटोन चले एफ, एफ में टोन मूव करेंगे जी, जी में टोन मूव करेंगे ए में टोन मूव करेंगे बी, एंड बी में सेमीटोन मूव करेंगे बैक टू सी. सो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्टेड आर सी मेजर स्केल, राइट? सो ये सी मेजर स्केल हम अपने इंस्ट्रूमेंट पे कैसे प्ले करते हैं? बेसिकली जहाँ भी टू ब्लैक्स होता है, लेफ्ट साइड वाला वाइट की सी, जहाँ भी टू ब्लैक्स है लेफ्ट साइड पे सी है, जहाँ भी थ्री ब्लैक्स है लेफ्ट साइड पे एफ है, राइट? सो सी के इस सी के साथ जो नेक्स्ट वाइट टू कीज है, सी, दिस इज डी, दिस ई, जहाँ भी सी है, सी डी ई, सी डी ई, ये टू कीज के नीचे थ्री वाइट कीज फॉलो अप करता है. जहाँ सेट ऑफ टू ब्लैक कीज है उसके नीचे थ्री वाइट कीज है, नेम्ड एज सी डी एंड ई. Similarly, here where you can spot the set of three black keys, so there are four white keys below it. जहाँ पे set of three black keys है उसके नीचे four white keys आता है, तो उसका नाम क्या है? F G A B. जहाँ पे दिख रहा है F G A B, and these black keys are your sharps to your white notes. So C, above C is C sharp, D, above D is D sharp, E, then there is no black key in between, so F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B,
again there is no black key in between, so C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C. So the whole pattern continues like this. It's like this on the keyboard. So this is how you locate your notes on your keyboard. So C major scale we have learned. So C major scale के notes क्या हैं? C, D, E, F, G, A, B, C. C, D, E, F, G, A, B, C. Right? C, D, E, F, G, A, B, C. This is your C major scale, right? एंड जब भी हम किसी भी मेजर स्केल का, वी हैव 12 नोट्स, वी हैव 12 मेजर स्केल, सो किसी भी स्केल का जब हम फर्स्ट थर्ड फिफ्थ नोट पकड़ते हैं मेजर स्केल का, वी गेट आर मेजर कॉर्ड. जैसे कि दिस इज आर सी मेजर स्केल, सो 135 सी मेजर कॉर्ड, सी शार्प मेजर स्केल 135 सी शार्प मेजर कॉर्ड, डी मेजर स्केल, सो 135 डी मेजर कॉर्ड, डी शार्प से मेजर स्केल 135 ऑफ डी शार्प मेजर कॉर्ड. ई से सेम प्रोसेस, 135 is your E major chord, F major chord, F sharp से स्केल बजाया, 135 होल्ड किया of your major scale, F sharp major chord, G major scale का 135, you get your G major chord, right? G sharp से same process, so you get your G sharp major chord. A से प्ले किया, A major chord आ गया, right? A sharp से प्ले किया, A sharp major chord आ गया 135, ठीक है? B से प्ले किया 135 प्ले किया, B major chord and back to C. So किसी भी स्केल का, किसी भी मेजर स्केल का जब फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ नोट हम होल्ड कर रहे हैं तो हमें एक मेजर कॉर्ड मिल रहा है. तो टोटल 12 मेजर स्केल्स निकले, हर एक नोट से एक मेजर स्केल बनाया, 12 मेजर स्केल्स निकले. 12 मेजर स्केल्स के बाद हमें क्या मिला उनसे? 12 मेजर कॉर्ड्स, राइट? अब मेजर स्केल से सिर्फ एक और भी एक चीज मिलती है हमें, क्या मिलता है? माइनर स्केल्स. तो किसी भी मेजर स्केल को जब मैं उसके 6 नोट से प्ले कर रहा हूँ, किसी भी मेजर स्केल को उसके 6 नोट से, तो मुझे एक माइनर स्केल मिलता है विच विल बी इट्स रिलेटिव माइनर. फॉर एग्जांपल दिस इज अ सी मेजर स्केल, राइट? दिस इज अ सी मेजर स्केल, राइट? सो सी मेजर स्केल का 6 नोट क्या है? 1 2 3 4 5 6. सो ए से जब मैं सी मेजर स्केल के ही नोट्स बजा रहा हूँ, so this is my A minor scale. This is your A minor scale, right? So C major scale and A minor scale will be also called relative scales. Why they will be called relative scales? Because they are using same notes. Both C major scale and A minor scale are using same notes. सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग नोट का जो डिफरेंस हो रहा है सिर्फ कि वो 6 नोट से स्टार्ट हो रहा है, पर नोट्स तो सारे वही लग रहे हैं, ये सी मेजर स्केल के नोट्स हैं. एंड ए से बजा रहा हूँ तो नोट्स तो वही चल रहे हैं, सी मेजर स्केल के नोट्स तो कोई अलग यूज नहीं हो रहे. सो सी मेजर स्केल एंड ए माइनर स्केल विल बी रिलेटिव स्केल्स. व्हाई? बिकॉज दे आर यूजिंग द सेम नोट्स. सो सिमिलरली एक एग्जांपल और डेमोंस्ट्रेट करते हैं, सी शार्प मेजर स्केल. दिस इज योर सी शार्प मेजर स्केल, राइट? सो 6 नोट क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 ए शार्प, राइट? सो जब यहाँ से मैं सी शार्प मेजर स्केल के ही नोट्स प्ले करूंगा. मैं क्या प्ले कर रहा था? सी शार्प मेजर स्केल के नोट्स ये प्ले कराता हूँ, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे. अब यहाँ से भी देखो सी शार्प मेजर स्केल चल रहा है. So this is your A sharp minor scale. And A sharp minor scale and C sharp major scale will be relative scales. Why they relative, are relative scales? Because they are using the same notes. मतलब if I talk about this is your C sharp major scale and this is your A sharp minor scale, I'm playing the same notes. राइट? द सीक्वेंस फर्स्ट नोट का चेंज हो गया. पहले मैं सी शार्प से स्टार्ट किया था वही स्केल बजाना, पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, अब सेकंड टाइम में मैंने उसी स्केल को वही स्केल बजा रहा हूँ, सी शार्प मेजर स्केल. इफ यू कैन, अगर आप इसके बाद सी शार्प देखोगे मेरा, तो देखो सी शार्प चलता जा रहा है बस, बिकॉज रूट मैंने ए शार्प यहाँ से ले रखा है. तो दिस विल बी कॉल्ड योर ए शार्प माइनर स्केल एंड सी शार्प मेजर स्केल एंड ए शार्प माइनर स्केल विल बी योर रिलेटिव स्केल्स. व्हाई? बिकॉज दे आर यूजिंग सेम नोट्स. सो दिस इज हाउ कि अब आपके पास 12 मेजर स्केल है, तो इट मींस आपके पास 12 माइनर स्केल्स भी हैं, है ना? जब हर एक स्केल को, पहले स्केल को मैंने 6 नोट से प्ले किया तो एक माइनर स्केल मिल गया, फिर सेकंड स्केल को मैंने उसी के 6 से प्ले किया तो मुझे एक और माइनर स्केल मिल गया. तो ऐसे करके मेरे पास 12 माइनर स्केल्स भी आ जाते हैं.
दैट्स और नेचुरल माइनर स्केल. माइनर स्केल 3 टाइप्स के होते हैं. एक होता है हमारा नेचुरल माइनर स्केल, एक होता है हार्मोनिक माइनर स्केल, एक होता है मेलोडिक माइनर स्केल. सो बेसिकली हमारा नेचुरल माइनर स्केल में इस तरीके से मिलता है जब हम किसी भी मेजर स्केल को उसके 6 नोट से प्ले कर रहे हैं. एंड वंस यू गेट योर नेचुरल माइनर स्केल, उसमें 7th नोट, जो भी आपका 7th नोट है, उसको जब आप एक सेमीटोन से इंक्रीज कर देंगे, 7th नोट जो भी है, 7th नोट आ रहा है स्केल का, उसको 7th नोट का सेमीटोन से एक सेमीटोन बढ़ा देंगे, तो दैट विल बी योर हार्मोनिक माइनर स्केल. सो लाइक जैसे ये सी मेजर स्केल था, 6 से बजाया तो ए माइनर मिला, ए नेचुरल माइनर. ए नेचुरल माइनर का 1 2 3 4 5 6 7 को इसकी जगह पे सेमीटोन रेज्ड, मतलब इंस्टेड ऑफ जी इफ आई हैव टू प्ले जी शार्प, आई विल नॉट प्ले जी दिस टाइम. दिस वाज माय नेचुरल माइनर, सो दिस इज योर जी. Instead of G, I have to play G sharp. So this is my harmonic minor scale, right? और कोई भी गाना सबसे पहले कोई भी सिंपल से सिंपल कॉम्पोजिशन ज्यादातर अपने नेचुरल माइनर से हार्मोनिक माइनर को टच करती है. कोई भी जैसे कि someone has like shared their screen. Yeah. So this was A minor scale. हार्मोनिक माइनर में आ गया, तो देखा नेचुरल माइनर से सीधा हार्मोनिक माइनर में शिफ्ट हो गया. तो ये जनरली होता रहता है, कोई भी नेचुरल माइनर की कॉम्पोजिशन हार्मोनिक माइनर को टच करती है ज़्यादातर केसेस में. तो इसलिए इंटररिलेटेड कहा जाता है, इन दोनों स्किल्स को साथ में यूज़ किया जाता है, इनका कॉम्बिनेशन, राइट. सो दिस इज हाउ यू गेट योर माइनर स्केल्स. अब किसी भी माइनर स्केल के फर्स्ट थर्ड फिफ्थ से, जैसे मेजर स्केल का फर्स्ट थर्ड फिफ्थ से मैं क्या मिला था, मेजर कॉर्ड्स. जब हमने किसी भी मेजर स्केल का फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ नोट इकट्ठे होल्ड किया था, सी मेजर स्केल फर्स्ट थर्ड फिफ्थ बजाया तो सी मेजर कॉर्ड मिला था. तो ऐसे किसी भी माइनर स्केल का 1 3 5 व्हेन यू विल होल्ड यू विल गेट अ माइनर कॉर्ड. जैसे कि दिस इज योर जैसे ये सी माइनर स्केल, सो 1 3 5 इज योर सी माइनर कॉर्ड. वैसे सी शार्प माइनर स्केल में व्हेन यू विल होल्ड 1 3 5 उसका माइनर स्केल का, तो दैट विल बी अ सी शार्प माइनर कॉर्ड. सिमिलरली विद डी 1 3 5, सिमिलरली विद योर डी शार्प, similarly with E, similarly with F, similarly with F sharp, similarly with G, similarly with G sharp, right? Similarly with A sharp के साथ, B के साथ, and again. So किसी भी माइनर स्केल का जब मैं 1 3 5 होल्ड कर रहा हूं, तो व्हाट आई एम गेटिंग अ माइनर कॉर्ड आउट ऑफ इट, राइट. तो इस तरीके से मुझे अब क्या क्या मेरे पास कंटेंट, मेरे को सामने क्या क्या कंटेंट मिल रहा है. मुझे 12 मेजर स्केल्स मिल गए हैं, मुझे 12 माइनर स्केल्स मिल गए हैं, और मुझे 12 मेजर कॉर्ड्स मिल गए हैं, और मुझे 12 माइनर कॉर्ड्स मिल गए हैं. ये 4 चीज़ें मेरी फिगर आउट होती हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं. इनको डेफिनेटली यू हैव टू प्रैक्टिस इट. सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू फिजिकली प्रैक्टिस इट ऑन योर इंस्ट्रूमेंट. आपको इंस्ट्रूमेंट पे इसको फिजिकली प्ले करना आना चाहिए, हर कॉर्ड को, एवरी कॉर्ड एवरी स्केल यू शुड फिजिकली प्ले ऑन योर कीबोर्ड. सिर्फ नॉलेज रखने से नहीं होगा. सो ये 4 चीज़ें हमारे पास आ गई. सो हमने क्या समझा था कि वर्ल्ड में कोई भी सॉन्ग है, अगर इफ आई टेक आउट एनी कॉम्पोजिशन फ्रॉम योर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इफ आई टेक आउट एनी कॉम्पोजिशन फ्रॉम इंडियन फोक म्यूजिक, आपका इंडियन कंटेम्प्रेरी से मैं कोई भी सॉन्ग ले लेता हूँ, बॉलीवुड कमर्शियल्स एंड ऑल दैट. वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी से मैं कोई भी सॉन्ग ले लेता हूँ. इफ आई टेक आउट एनी कॉम्पोजिशन फ्रॉम योर इंटरनेशनल फोक टू वेस्टर्न क्लासिकल, आई टेक आउट एनी कॉम्पोजिशन फ्रॉम एनी जोन, इट्स बेस्ड ऑन सम और द अदर स्केल. किसी ना किसी स्केल पे बेस्ड है, राइट. अगर वो उसको इवन नॉट ओनली कॉम्पोजिशन, उसका पूरा अरेंजमेंट, उसके अराउंड जितनी भी चीज़ें, कॉर्ड्स, उसकी हारमोनीज, उसके काउंटर पार्ट्स, उसके फिलर पार्ट्स, जितने भी आप म्यूजिकल सेक्शंस जो आप सुन रहे हैं, वो सिर्फ एक स्केल से जनरेट हो रहा है. सब का बेस एक स्केल है, उसके अराउंड पूरा सारा म्यूजिक जनरेट हो जाता है. सो स्केल इज लाइक वो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे आप लोग अभी अपने आप, जिस आपके पास एक फ्लोर है ना, जिस फ्लोर पे आप लोग टिके हुए हो, आपका फर्नीचर टिका हुआ, आप बैठे हुए, एक फ्लोर है. अगर वो फ्लोर नहीं होगा तो आप हवा में नहीं रुक सकते. तो सिमिलरली वो फ्लोर एक कॉम्पोजिशन जिस पे खड़ी हुई है, जिस पे कॉम्पोजिशन बनी हुई है, वो एक स्केल है. अगर वो स्केल नहीं है तो वो कॉम्पोजिशन नहीं हो सकती. किसी न किसी स्केल से इंस्पायर्ड जरूर है हर कॉम्पोजिशन.
सो दैट्स व्हाई स्केल्स आर इंपॉर्टेंट। तो अब कोई भी कॉम्पोजिशन हमने जाना कि किसी एक स्केल में चल रही होती है, और हमारे पास कितने हैं अभी 24 कॉर्ड हैं बेसिक, 12 मेजर 12 माइनर। तो अगर एक स्केल में कॉम्पोजिशन चल रही है तो उसमें कौन कौन से कॉर्ड लगेंगे? उसमें सब 24 कॉर्ड तो नहीं लग जाएंगे। एक एक कोई भी एक स्केल में कॉम्पोजिशन चल रही है, उसमें सारे के सारे कॉर्ड नहीं लग सकते। कौन से कॉर्ड लगेंगे? सिलेक्टिव कॉर्ड्स। वो भी हमें स्केल से मिलता है। सो हम किसी भी स्केल के फैमिली ऑफ कॉर्ड्स निकालते हैं कि पर्टिकुलर एक स्केल कोई भी जिसमें कॉम्पोजिशन चल रहा है, उसका फैमिली कॉर्ड्स क्या क्या है, कि उस स्केल की फैमिली में कौन कौन से कॉर्ड्स आते हैं कि जो कि उस स्केल में कॉम्पोजिशन को सपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें किसी भी स्केल में हर नोट से, स्केल में 7 डिफरेंट नोट्स हैं, सो हर नोट से ऑल्टरनेट नोट्स का ट्रायड बनाना है। सीक्वेंस कैसे चलना है? ऑल्टरनेट नोट्स। कितने नोट्स तक? 3 नोट्स तक ट्रायड फॉर्म करना है, 3 नोट्स का सेट। सो लाइक इफ आई हैव सी मेजर स्केल, सी डी ई एफ जी ए बी सी, तो सी से ऑल्टरनेट नोट, जैसे सी मेजर स्केल है तो सी से, ये सी मेजर स्केल है, सी से एक छोड़ के एक, अगर मैं 3 नोट्स पकड़ता हूँ तो दिस इज माई सी मेजर कॉर्ड, फर्स्ट ट्रायड। सी मेजर स्केल में सेकेंड नोट से एक छोड़ के एक अगर मैं होल्ड करता हूँ तो दैट्स माई डी माइनर कॉर्ड, दिस माई सेकेंड कॉर्ड फ्रॉम द स्केल। सेम चीज ई से करता हूँ, सेम स्केल के अंदर रहते हुए, तो थर्ड कॉर्ड मिलता है मुझे स्केल के अंदर, ई माइनर कॉर्ड, राइट। वही चीज एफ से करता हूँ, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, तो मुझे क्या मिलता है? स्केल का फोर्थ कॉर्ड विच इज योर एफ मेजर कॉर्ड। सिमिलरली फिफ्थ नोट से करते हैं ये काम, जी मेजर कॉर्ड, सिक्स नोट से ऑल्टरनेट नोट्स ए माइनर कॉर्ड, सेवन नोट से बी डिमिनिश कॉर्ड एंड सी मेजर कॉर्ड। ऐसे किसी भी स्केल में, फॉर एग्जांपल सी शार्प मेजर स्केल है, इसमें कौन कौन से कॉर्ड्स लगेंगे कैसे पता लगेगा? ऑल्टरनेट नोट्स, पहले इसी स्केल में रहना है तो एक छोड़ा एक, ये, सो दिस इज योर फर्स्ट कॉर्ड सी शार्प मेजर कॉर्ड। सेम स्केल में रहते हुए सेकंड नोट से एक छोड़ा ये पकड़ा, ये छोड़ा ये पकड़ा, दिस इज योर सेकंड कॉर्ड डी शार्प माइनर कॉर्ड। सेम स्केल में ये छोड़ के ये पकड़ा, ये छोड़ के ये, दिस इज योर थर्ड कॉर्ड एफ माइनर कॉर्ड। नाउ सेम स्केल में यहाँ से एक छोड़ के ये पकड़ा, एक छोड़ के ये, दिस इज योर एफ शार्प मेजर कॉर्ड। सेम स्केल में फिफ्थ नोट, एक छोड़ के ये पकड़ा, एक छोड़ के ये, सेम स्केल में ए शार्प माइनर कॉर्ड नेक्स्ट, सी डिमिनिश कॉर्ड नेक्स्ट एंड बैक टू सी शार्प मेजर कॉर्ड। सो ये सी शार्प मेजर स्केल में अगर कोई भी कॉम्पोजिशन चल रही हो तो ये पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉर्ड्स लगेगा। अभी कॉर्ड्स कैसे, इनमें से कौन से कॉर्ड लगेंगे ये भी कैसे कैसे पता लगता है, जनरलाइज कैसे क्या आइडिया होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी मेलोडी लाइन है हमारे, जैसे सी मेजर स्केल है, अब सी मेजर स्केल में लगने वाले कॉर्ड्स कौन से? राइट, ये सारे कॉर्ड्स लगेंगे सी मेजर स्केल के अंदर। अब एक कोई मेलोडी लाइन है जैसे कि स्टार्टेड फ्रॉम सी, तो मैंने पहले सी मेजर कॉर्ड लगाया, अभी कौन से नोट पे लैंड किया? जी नोट पे। सो लेट्स सी कि हमारे ये जो फैमिली कॉर्ड्स निकल रहे हैं इसमें कौन कौन से ऐसे नोट्स हैं जो कि कॉर्ड्स हैं जो कि जी नोट को सपोर्ट करते हैं। लेट्स चेक आउट दिस थिंग, ठीक है। सो एक इसमें जी आ रहा है, फर्स्ट कॉर्ड, यस। सेकंड कॉर्ड में जी नहीं है, थर्ड कॉर्ड में जी है, ये रहा। नेक्स्ट कॉर्ड में जी नहीं है, नेक्स्ट कॉर्ड में जी है, ये रहा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फिर इसमें है, राइट। सो 3 कॉर्ड्स मिल रहे हैं मुझे, एक तो सी मेजर जिसमें जी नोट ये रहा, एक मुझे ई माइनर जिसमें जी ये रहा, और एक ये जिसमें जी है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग आई कैन डू। जी पे मैंने दोबारा सी मेजर कॉर्ड लगा दिया। दिस इज द सेकंड थिंग आई कैन डू, जी पे मैंने ई माइनर कॉर्ड लगाया, नेक्स्ट ट्राई किया, इस बार मैंने जी कॉर्ड लगाया। सो कौन सा कॉर्ड मुझे बेटर लग रहा है, आई हैव टू फिगर आउट। सो मुझे अगर सपोज जी फाइनल लग रहा है, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट ट्रेस कहां से उठ रहा है? ए से। सो ए को सपोर्ट करने के लिए ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है स्केल में से, है ना। सो आई कैन पिक द लाइन लाइक दिस, सो आई कैन पिक द लाइन लाइक from this chord also, and it's landing on G note again. So I have again these 3 options to freeze from. So जो नोट आपका मेलोडी में आ रहा है उसके अंदर से आपको फिगर आउट करना है कि कॉर्ड कौन सा सपोर्ट करेगा। स्केल के अंदर 2-3 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको एक डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा सूटेबल जा रहा है कॉम्पोजिशन के साथ।
दिया, पर सेम फ्रेज में अब दोबारा ए से उठा तो मैंने एफ लगा दिया, फिर दोबारा जी पे आया मैंने जी लगा दिया। तो मैंने बेसिकली ए पे एक बार ए माइनर यूज किया, फिर जी पे ई माइनर यूज किया, फिर ए पे एफ मेजर यूज किया, फिर जी पे जी मेजर यूज किया। तो उन्हीं दो नोट पे 4 कॉर्ड का यूज हो गया। नोट दो ही चल रहे थे, ए जी। सो ए पे ए माइनर, जी पे ई माइनर, ए पे एफ मेजर, जी पे जी मेजर, 4 अलग अलग कॉर्ड लग गए। सो है ना, सो है ना, this way you figure out chords for Also, any melody. could you repeat what you just explained? थोड़ा fast लगा. Like, how did you Okay, put? okay. How you put chords like this section? Yeah. You need explanation for this section again, right? Okay. So it's like, देखो हमारा एक सॉन्ग का मेलोडी चल रहा होता है जिसके सपोर्ट में हम कॉर्ड्स लगाते हैं, राइट? सो मेलोडी को पहले हमें देखने से कि अब ये कौन से नोट पे आके रुका, जी नोट पे, ठीक है? सो मैंने सी से स्टार्ट किया, अब ये जी पे आके रुका। अब जी नोट के लिए अब सी मेजर स्केल के में कॉर्ड्स कौन कौन से लगते हैं? ये सारे फैमिली कॉर्ड्स हैं इसके, राइट? तो इसमें से जी कौन कौन से नोट में आपको दिखाई दे रहा है? इसमें है जी, इसमें नहीं है, इसमें है जी, इसमें नहीं, इसमें है जी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। सो मेरे पास 3 ऑप्शन है, तो मैं बारी बारी से क्या करूंगा, मैं तीनों को पुट अप करके देखूंगा। जैसे कि फर्स्ट ट्राई मैंने क्या किया, वापस जी दे, सी कॉर्ड दे दिया। You are choosing the chords which have a G because you are Yes. stopping the melody on G. Yes, because मेरा मेलोडी में जी नोट है, that's why I'm looking for the chords which will support this particular note. इस नोट की हार्मनी बनेगी। ये कॉर्ड्स भी क्या बेसिकली हार्मनी नोट्स है ना आपस में। सो इस जी नोट को हार्मनी देने के लिए या तो मैं सी और ई का हार्मनी दे सकता हूँ इससे, या फिर इसी जी को मैं ई और बी का हार्मनी दे सकता हूँ ई माइनर कॉर्ड बना के, या फिर इसी जी को मैं साथ में बी और डी का हार्मनी दे सकता हूँ। जी, इस जी नोट को, जी नोट तो रहेगा क्योंकि जी है। Because we are putting pressure on the G note in the melody. हाँ, वो मेलोडी में है, उसको उस मेन मेलोडी नोट के अराउंड ही हमें हार्मनी डेवलप करना है, है ना? वो मेन नोट के अराउंड हार्मनी डेवलप करेंगे, तो मेन नोट तो इंक्लूडेड होना चाहिए। फिर आगे फ्रेज बढ़ता है हमारा। सो सी इट्स पिकिंग अप फ्रॉम ए नोट and dropping it, finishing it. I'm stopping it where I'm concluding my phrase at G note. At G note, right? So for picking up, I have to take option which the chords which include your A note, right? So in scale, if I see this doesn't include your A note, इसमें A आता है, ये रहा, इसमें A नहीं आता, इसमें A आता है, ये रहा, इसमें A नहीं आता, इसमें A आता है, ये रहा। So मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। So उनमें से I have decided कि सपोज करो, मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेट करके बताया, मैंने पहले ए लिया एंड इट्स ड्रॉपिंग एट जी। सो जी के लिए अगेन मेरे पास वही 3 ऑप्शन थे जो पहले मैंने बताए थे, ई सी, ई माइनर और जी। तो मैंने फॉर ए वी हैव डीएफए एसएसी, हाँ, एंड एसीई आल्सो, मतलब 1 कॉर्ड, सेकंड कॉर्ड एंड थर्ड कॉर्ड। सो मैंने क्या किया, एक टाइम पे मैंने ए के लिए ए माइनर लगाया, फिर मैं जी के लिए ई माइनर लगाया, फिर दोबारा ए पे आया तो मैंने एफ मेजर चूज किया। इस बार मैंने दूसरा कॉर्ड चूज किया, पहले मैंने ए माइनर चूज किया था। देखो फर्स्ट टाइम मैंने ए माइनर चूज किया, सेकंड टाइम मैंने ई माइनर। अब दोबारा से so when you're stopping on A, you are choosing the chords which have A, and when you come back to G, you are chording chords which have a G. yes, this chord should have G। फिर दोबारा से ए वाला फ्रेज पिक हो रहा है मेरा, जिसमें ए नोट से पिक हो रहा है। तो फिर मैंने ए के लिए सेकंड टाइम में एफ मेजर कॉर्ड सिलेक्ट किया, फिर सेकंड टाइम फ्रेज दोबारा जी पे खत्म हो रहा है, तो सेकंड टाइम आई अगेन सिलेक्टेड माय जी कॉर्ड। सो टोटल फ्रेज कॉम्बिनेशन क्या बना हमारा, फिर दोबारा है ना, तो कॉर्ड 4 लग गए, पहले ए माइनर ए के लिए एंड फ्रेज कंक्लूड हो रहा है जी पे, ई माइनर आ गया, फिर दोबारा से फ्रेज पिक हो रहा है एंड दोबारा से जी पे ड्रॉप हो रहा है। तो मैंने दोनों बार अलग अलग कॉर्ड्स का सिलेक्शन लिया। सो कैसा गया, है ना? और फिर इन्हीं कॉर्ड्स को आप आरपीजीओ में कन्वर्ट करते हो, आरपीजीएट करते हो इन्हीं कॉर्ड्स को कि अब ये क्या, सी, देखो सी का आरपीजीओ चल रहा है, पहला कॉर्ड मैंने सी सिलेक्ट किया था, अब जी का
फिर मैंने A सिलेक्ट किया था, फिर E, फिर F सिलेक्ट किया था, फिर G। सर ये नहीं पता चला, व्हाट डिड यू डू इन द ये आर्पेजियो? उन्हीं कॉर्ड्स के बेसिकली आरपीजी, उन्हीं कॉर्ड्स को हम आरपीजीएट करते हैं बेसिकली। जब हम एक बार कॉर्ड फाइनलाइज हो जाते हैं तो हम उसी कॉर्ड से क्या करते हैं, उसी कॉर्ड के नोट्स को बेसिकली रिदमिकली ब्रेकअप करते हैं और रिदमिकली प्ले करते हैं। मतलब द सेम कॉर्ड, जैसे कि दिस इज योर कॉर्ड, है ना। अब आई एम नॉट प्लेइंग लाइक, आई एम लाइक 1 2 3 Yeah, so what is 1 the 2 difference? 3 Like, 4 1 2 3 4 1 2 3। अब मैं काउंट्स में उसको प्ले कर रहा हूँ, मैं उसे रिदमिकली नोट्स को तोड़ कर ब्रेकअप करके प्ले कर रहा हूँ, देखो। है ना। अब मैं उन नोट्स को तोड़ के प्ले कर रहा हूँ ब्रेकअप करके। These RPGs are filling the gaps. यस यस एग्जैक्टली सेम आपका कॉर्ड फाइनलाइज होता है, कॉर्ड के नोट्स को जब आप रिदमिकली प्ले करते हो तो एक कॉम्पोजिशन को भी एक रिदमिक शेप मिलता है साथ में, एक कॉर्ड्स का so sir, कंप्लीमेंट in मिलता an arpeggio, you add the same notes like you are playing the C chord, C है। major यस chord. यस तो यस वही यस chord यस या you take आरपीजी आजू बाजू के notes? नहीं Same notes. आरपीजो हैज टू कम फ्रॉम द योर कॉर्ड ओनली। बट ये लिमिटेशन नहीं हो सकता कि कॉर्ड आपका सिर्फ इसी ऑक्टेव पे मैं प्ले करूं, लाइक सी मेजर कॉर्ड लग रहा है तो आई कैन फाइंड माय सी मेजर कॉर्ड हियर, आई कैन फाइंड आउट माय सी मेजर कॉर्ड हियर, आई कैन फाइंड आउट माय सी मेजर कॉर्ड हियर एंड आई कैन फाइंड आउट माय सी मेजर कॉर्ड हियर। सो मे बी इफ आई एम प्लेइंग, so this is also arpeggio for C major chord। देखो इधर C major chord के notes हैं ये, and I played हाँ, again, this is your C major chord here, so this is C G, major G, chord, है ना, this is C major chord, है ना, G, G. this is your arpeggio for C major chord। so you can play it in different octaves, but the Definitely notes remain the same. the notes has to remain That is an arpeggio. yes even if you are adding some of other notes, so it will definitely means this is some chord, जैसे for example ninth chord है which includes your ninth note, like this is 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। so अगर ninth chord मेरा लग रहा है, if I'm playing the arpeggio for my ninth chord, so अगर chord में extra note आ रहा है तो वो arpeggio का part बनेगा। first you have to decide the chord exactly क्या chord लगना है। if it's like What extended extra chord note will add, sir? means suppose if it's आप पूछ रहे थे कि आजू बाजू का notes नहीं लगता, for example for we were talking about C, so C added 9 Yes. chord कैसे बनता है हमारा, C added 9 chord कैसे बनता है, when we'll add this D note, when we'll add this D note to your Yes. C arpeggio, this is a ninth note, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, right? Yes. So if you're applying the ninth chord, then you have to include that note in your arpeggio, है ना? Sir, how So to identify major minor chord? yes, Sir, how to identify major and minor chords? how to identify means by looking at it or by hearing it. Sir, by looking at it. Sir, basically, sir, I don't know how to remember chords, sir. That's So you have to practice them. I have already told you how to form them. Have you got it? It means how to form your minor chords, how to get it on your sheet first. मतलब how to write it down first on a paper. Have you got it? I have sir, already I told you. didn't. See, I didn't. see, when you get your minor scale and when you hold the first, third, fifth note of your minor scale, any minor scale like C minor scale, and you play 1 3 5 of your minor scale, if you play these three notes together, that's your C minor chord. When you are playing the first, third, fifth of any minor scale together, it's your minor chord. Okay. सर आरपीजीओ में एक ऑक्टेव से दूसरा ऑक्टेव में कैसे जाना है? क्या चीज? Again, can you come again with the question? आरपीजीओ में एक ऑक्टेव से दूसरे ऑक्टेव में कैसे जाना है सर? Okay, for even for your scales and for your arpeggios, you have to understand one thing. मतलब for playing anything on your instrument when you are playing, so thumb is where. Hello. Yeah. So I was explaining. So thumb is your like transitional finger.
सपोज मैं अपने कीबोर्ड पे if I'm playing anything in my right hand or I'm playing from my right side towards my left hand and I end up with my fingers and I have to go more towards my left side, तो मैं क्या करूँगा? I can't shift from any other finger. Thumb is on only transitional finger. मैं thumb के behalf पे I can bring my any of finger here and I can get my hand free towards my left side again. And again, when I reach, again I can use the same technique to get my hand again towards my left. Similarly, for going towards right, I can't cross it with any of the fingers. Thumb, I have to bring thumb. When I end up, I'll bring my thumb from below, and again I get the space for my your right side. So the same technique has to be applied for your like arpeggio thing. Thumb on thumb, I transited to my other finger, and I'm transiting. I am keep transiting. So see, with my thumb I can transit it for anything, and even for your like runs, I'm transiting like if I have to give a run for C major chord. C major chord. There's a C major chord again. This is C major chord. This is C major chord. So to give it a run, I'm transiting my hand with the help of my thumb. Even if I have to play the scale and I end up with my fingers, thumb, and I get my scale going on again with my thumb, I'm able to transit my hand easily towards right, and with the help of thumb again. So for anything means for transiting means you have to get flexibility with your thumb. Your thumb should be Okay, flexible sir. enough. And while you get your thumb movement, don't move your elbow. Means like taking out your thumb like from elbow. Don't do that. Has to be very smooth. Means my arm will glide, but not this way. Has to go like very smoothly. ठीक है? Not like this. Thumb ऐसे नहीं निकालेंगे. For any kind of finger, it should be flexible enough to move in. जैसे कि अगर मुझे ये लाना है तो मैं इसको ऐसे नहीं लाऊंगा. अगर मुझे फिफ्थ फिंगर भी लाना है तो ये इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ. आई शुड गेट इट हियर. मुझे ऐसे नहीं लाना है, ये भी ध्यान रखना. तो थंब ट्रांजिशनल फिंगर होता है, बट उस पर वर्क उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे करना है. एल्बो मूवमेंट से उसे नहीं मूव करना है. ओके सर की प्रैक्टिस कैसे करनी है? किस चीज का? कॉर्ड्स का सर. कॉर्ड्स का प्रैक्टिस. सो व्हाट यू डू इज लाइक आप अपने पास सारे 12 के 12 मेजर कॉर्ड्स एक बार आप ले लो. सो सबसे बेसिक एफर्ट स्टार्ट करो. क्या करो उसमें? आप एक रिदमिक पैटर्न में प्ले करो. चाहे लेफ्ट राइट एंड चेंज द कॉर्ड. सो ये लेफ्ट राइट है ना, ये बेसिकली आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा काउंट साइकिल बनाएगा. सो विद इन अ काउंट साइकिल आपको चेंज भी करना है उसे. सो जैसे कि सी मेजर कॉर्ड राइट लेफ्ट राइट, सेम थिंग. सी शार्प पे लेफ्ट, सेम थिंग बी पे, एंड 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4. ठीक है. तो इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ऐसा ना हो कि एक बार हाथ प्लेस हो गया 1 2 3 4 और फिर चेंज करके वेट कर रहे हैं जी आराम से चेंज हो रहा है, फिर 1 2 3 4. नहीं, अगर इतनी फास्ट आप बजा रहे हो ना तो आपका ट्रांजिशन भी इतना फास्ट होना चाहिए. अगर आप इतना फास्ट बजाना है ना तो फिर ट्रांजिशन की भी प्रैक्टिस करो कि 1 2 3 4 1 2 3 4. सबका ट्रांजिशन भी उस हिसाब से हो, स्पीड पे हो. हेलो. अदरवाइज गो स्लो. 1 2 3 4. यस सर आवाज आ रही है? हाँ, अरे एक मिनट, कुछ पूछ रहे थे पहले वो जिनका कोई नहीं चल रहा था. सर मैं पूछ रहा था कि सर अभी आपने पूरी मेजर कॉर्ड्स बस प्ले करी ना? हाँ, ये सारे मेजर कॉर्ड्स प्ले किए थे. ये सी मेजर कॉर्ड था. ये दिस इज योर सी शार्प मेजर कॉर्ड, दिस इज योर डी मेजर कॉर्ड, दिस इज योर डी शार्प मेजर कॉर्ड, दिस इज योर ई मेजर कॉर्ड, एफ मेजर कॉर्ड, जी मेजर कॉर्ड, सॉरी जी मेजर, जी शार्प, ए शार्प, बी and C. Sorry, I skipped one note in between. Very sorry. I think you'll know it कि F क्या F sharp है and then G. Yes. इसी की प्रैक्टिस सर एकदम फास्ट होनी चाहिए. हाँ, yes. इसका आप धीरे धीरे पहले आप बिल्कुल बेसिक टेम्पो पे प्रैक्टिस करो इसको. जब आप कर लोगे ना, जब आपका ट्रांजिशन क्लीन होने लग जाएगा ना तो अपने आप स्पीड बनती जाएगी. जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना क्लीन शिफ्ट होता जाएगा.
उतना क्लीन शिफ्ट हो जाएगा ये। So Okay. can we practice एक family chord है, for example C major scale लेते हैं तो C का chord फिर D का chord, मतलब वो major minor हाँ minor बिल्कुल major बिल्कुल 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 कर सकते हो आप, किसी भी स्केल की फैमिली कॉर्ड्स पे ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग विद एनी काइंड ऑफ रिदम, आप कोई भी रिदम रख सकते हो, जरूर नहीं आपको 1 2 3 4 रखना है, बट कीप इट सम काइंड ऑफ रिदम। आप आरपीजेट भी कर सकते हो, कीप इट इन एनी फॉर्म ऑफ रिदम। अगर बेसिक रिदम कुछ नहीं समझ आ रहा रिदम, बेसिक रिदम चलो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, डू इट विद सी शार्प मेजर स्केल का फैमिली और कॉर्ड। ऐसे सी सारे शार्प, हाँ ये देखो अब सी शार्प मेजर कॉर्ड का है ना, सब स्केल्स के फैमिली कॉर्ड्स यू कैन प्रैक्टिस So इट। can we get the fingerings of these chords, like when I'm playing all major minor chords have first practice with basic fingers. Your 1 3 and 5. See, I'm holding 1 3 and 5, and here also 1 3 and 5, and for all chords, see, same fingering, see, same fingering, same fingering. even when the black keys come, it remains Yes. 1 3 and 5? Yes, even for A sharp, see, there's one black key and two white keys, so also 5 3 1, and your 1 3 5, and in B major scale it's like one white key and two black keys, so then also 5 3 1 and 1 3 5. When we take F sharp major scale, it remains the same? It remains the same, 1 3 5 for every chord. See, I'm not changing finger for any of the chords. See, So we can practice these chords in two ways, like first we C sharp D sharp, वो सारे chords, yes और बिल्कुल फिर क्रोमेटिक वे में सारे प्रैक्टिस करो, सारे हाँ। मेजर्स पहले एक बार कमांड में कर लो, प्रैक्टिस ऑल माइनर्स, क्योंकि होगा क्या कि जैसे जैसे स्केल का स्टाइल चेंज होता जाएगा, वो मेजर माइनर का कॉम्बिनेशन स्केल में चेंज होता जाएगा। हाँ, so for that we can practice वो family chord वाला, फिर हाँ फिर उसको फैमिली कॉर्ड्स के हिसाब से आप प्ले कर सकते हो, तो एटलीस्ट सारे मेजर माइनर्स पे एक बार कन्वीनियंट होंगे कि सारे मेजर्स एंड माइनर्स कौन से हैं, और स्केल में भी व्हेन यू आर मूविंग इन द फैमिली कॉर्ड, सो यू विल बी एबल टू एनालाइज आल्सो कि ये मेजर है और ये माइनर है, बिकॉज यू हैव सेपरेटली प्रैक्टिस्ड ऑल मेजर एंड माइनर्स वंस, so it will be easy for you to get in scale, in between the scale which one is minor or which one is major, so it will be very easier for you to get that also. सर एक डाउट और मेलोडी बना लेते हैं ना, तो उसमें कोड जैसे कहाँ कौन सा लगाना है, कैसे पता क्या? चलेंगे? क्या चीज, क्या सर जैसे मेलोडी पहले जैसे सी मेजर में स्केल में बना ली, तो उसमें हाँ कोड मतलब कैसा पता चलेगा कि कौन से लगेंगे कहाँ पे? हाँ वही मैंने अभी बताया था कि आप जैसे स्केल का फैमिली कॉर्ड निकालेंगे, जैसे सी मेजर स्केल है, अब इसके फैमिली के कॉर्ड निकाल लिए कौन कौन से लग रहे हैं, इसकी फैमिली में ये कॉर्ड लग रहे हैं, और जैसे मैंने एक छोटी सी मेलोडी बनाई है जैसे कि है ना, एक छोटा सा फ्रेज सी मेजर स्केल में ही है, ठीक है। अब देखा जाए तो मेरा फ्रेज 3 बार सी नोट पे आ रहा है, अगेन ऑन सी, अगेन ऑन सी, एंड दिस टाइम इट्स एंडिंग ऑन डी। सो मैं देखता हूँ सी नोट कौन कौन से कॉर्ड में मुझे मिलता है, इसमें मिल रहा है ये रहा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है ये रहा, एफ मेजर में है, जी में नहीं है, ए माइनर में ये रहा, इसमें नहीं है, एंड बैक टू सी मेजर ये रहा। सो मैंने अब क्या किया, सी मेजर लगाया, फिर ए माइनर में गया। सो कॉर्ड में कॉर्ड देखते हैं, आरपीजियो में भी नहीं करते, है ना, ये इसमें भी सी है। So when you went on B, why did you take the A minor chord? आप चेंज भी कर सकते हो, मतलब मैं तो जस्ट बैक सीक्वेंस में जा रहा था, यू कैन गो इट लाइक ए माइनर से स्टार्ट कर लो, गोइंग टू एफ, यू कैन प्ले इट लाइक सी एफ। So it is not a thumb rule जैसा कि when if you take हाँ, B, anything, I can change the progression like C, going to F, going to A minor. अब now D for but D. necessarily it should be of the same family chord. हाँ, it should be from the scale. देखो scale और family, sorry, scale and chord आपस में एक दूसरे को बिल्कुल complement करते ही करते हैं, क्योंकि जैसा scale चलेगा उसी scale के अंदर से chord निकलेगा, जैसा भी स्केल चलेगा उसी स्केल के अंदर से कॉर्ड निकलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा अभी ये एक गाना ही चल रहा था, अभी मेरा स्केल क्या चल रहा है ना, तो मुझे कॉर्ड सारा इसी के अंदर से मिलेगा, जो भी कॉर्ड मैंने लगाया
अब उसके बाद क्या हुआ, अभी यहाँ तक ये यहाँ ही है, अब क्या होगा, स्केल चेंज हो गया। तो कॉर्ड उसके अंदर से उस इस स्केल की फैमिली कॉर्ड जब मैं निकालता हूँ तो ये मिला मुझे, तो क्योंकि स्केल भी हो गया मेरा, तो इसीलिए वो कॉर्ड का इम्पैक्ट भी सॉन्ग के अंदर चेंज हो जाएगा क्योंकि स्केल वेरी हो गया। अभी 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 थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, जैसे ए माइनर की फैमिली के कॉर्ड्स निकाले थे हमने, ए माइनर स्केल है, ठीक है, तो ये निकलेंगे, राइट। अगर ए हार्मोनिक माइनर कर दूं, है ना, सो अगर Yes. यहाँ से अल्टरनेट नोट्स देखूं, ये मेरा ये हार्मोनिक माइनर चल रहा है, यहाँ से अल्टरनेट नोट बनाए, ये छोड़ के ये छोड़ के ये, ठीक है। अब देखो ये हार्मोनिक माइनर का कॉर्ड है, एंड अगर माइनर स्केल चल रहा है तो ये सारे कॉर्ड चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब ये जी नोट आ रहा है जी नोट किस में आता है, सर वापस समझाना थोड़ा स्लोली। देखो ये चल रहा है ना, तो You're playing a minor chord. हाँ ए माइनर। अब मैंने कौन सा कॉर्ड बजाया, जी भी कहाँ से आया, ए माइनर की फैमिली में, हाँ, है ना जी, और जी नोट भी किस में आता है, ए नेचुरल माइनर में, अग्रीड, क्योंकि ए नेचुरल माइनर क्या है ये, और हार्मोनिक में क्या होता है, इसकी जगह ये प्ले करेंगे तो ये तो आएगा भी नहीं, है ना, क्या हार्मोनिक माइनर कैसे होता है, ये तो आएगा भी नहीं, हाँ। ठीक है। तो अभी तक नेचुरल माइनर में हमारा गाना, देखो जी नोट आ रहा है, पूरा इन लग रहा है ना, ये नोट फील हो रहा है ना, इन है, आ रहा है जी नोट इन। अब यहाँ पे हार्मोनिक माइनर लग गया, अब कॉर्ड भी देखो क्या आ गया, हार्मोनिक माइनर, पर ए माइनर का ही कॉर्ड, हार्मोनिक हाँ माइनर। हाँ हाँ, पर कॉर्ड हार्मोनिक माइनर का आ गया, इफ आई एम प्लेइंग हार्मोनिक माइनर, और यहाँ से और फैमिली कॉर्ड बनाता हूँ मैं, यहाँ से फैमिली कॉर्ड कैसे बना रहे हैं, हर एक नोट से ऑल्टरनेट ना, तो अगर यहाँ से बना रहा हूँ तो दिस इज द कॉर्ड, So you are changing the natural minor to इनटू harmonic हार्मोनिक minor. माइनर, तो कॉर्ड्स भी हार्मोनिक माइनर के लग जाएंगे, दिस इज व्हाट आई मीन टू से। तो जैसे जैसे स्केल चेंज होता है उसके कॉर्ड भी वैसे ही इम्पैक्ट करते हैं। अच्छा, ओके। या तो सर, एक doubt है। उसमें B sharp था, तो then you took G, B sharp, D. हाँ, तो मैंने ई जी शार्प बी पकड़ा, आपका ई मेजर कॉर्ड, वो की ए हार्मोनिक माइनर की फैमिली से मिलता है मुझे, ओके। है ना। सो इसलिए कोई भी गाना इजीली अपना, जैसे जैसे स्केल चेंज होगा उसका कॉर्ड इम्पैक्ट भी चेंज हो जाएगा, कॉर्ड फैमिली कॉर्ड चेंज हो जाएंगे तो कॉर्ड्स भी अलग अलग तरीके के लगने शुरू हो जाएंगे, अलग कॉर्ड्स लग जाएंगे, जो न्यू स्केल में जिसमें भी वो ट्रांजिट हुआ है उस पर्टिकुलर स्केल में जो भी कॉर्ड्स की फैमिली कॉर्ड्स निकलेंगे, तो कॉर्ड साइकिल भी उसी के अंदर मूव हो जाएगा उस कॉम्पोजिशन का। सर could you conduct like आप एक एक कोई भी सॉन्ग लो और उसके स्केल्स कॉर्ड्स, लाइक यू टुक 1-2 एग्जांपल्स अभी, तो ऐसे कोई भी सॉन्ग्स के एग्जांपल्स लेके उसके कॉर्ड्स और वो एक केस स्टडी जैसा on that song, like we discuss the how is it being played, उसके कौन से स्केल्स चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंगली कैसे कॉर्ड्स चेंज हो रहे हैं। हाँ, सो यू वांट मी टेक इट टू टेक राइट नाउ मींस फॉर सम सॉन्ग, नहीं इन अभी या बाद में whenever you take lectures हमारे, हाँ हाँ तो हाँ हाँ, could you just take these case studies for जैसे sure of songs, for sure I'll keep this in mind and definitely I'll design any it song you pick, next any second. song you pick and we'll discuss उसका chords Right, क्या है, उसका कैसे चेंज हो रहा है, right, उसके कैसे arpeggios है, right, for sure we can do this in future. because for I'll now keep, I know I have learned all the major scales, all the minor scales, I know all the 24 chords, but I'm not seeing okay, where I can apply, like ऐसे link नहीं हो रहा है, I know all, I can play all of them perfectly. okay, so what I'll suggest you like to study few of the compositions, means to cover few of the compositions by some other artists, so that will help you out in getting that, मतलब कि और आर्टिस्टों ने कॉर्ड के कलर्स, कॉर्ड के फ्लेवर्स को कैसे यूज किया है, मे बी मीन्स समटाइम्स वी नो थिंग्स टेक्निकली, जैसे कि मेजर कॉर्ड्स टेक्निकली बजाना जानते हैं, बट इनसाइड योर हेड, इनसाइड योर माइंड उसका फील कैसा है, योर ईयर डजंट रिमेंबर इट, your Yes, mind exactly. mind only remember the notes you are playing, and the color it's creating, that it's not memorized by you, मतलब उसका Yes, कलर and इम्पैक्ट also क्या है। जैसे आपने अभी के जै- when you are pausing on G, you took the G chord, when you are pausing on A, you took Yes, the A minor, मतलब yes, ऐसे you
explained तो ऐसा पता चला. When I was looking at compositions, I was not getting it, though I knew all the chords and scales. मतलब ऐसे यस, तो लिंक उसको नहीं हो रहा था. हाँ मैं समझ रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा उसको बैठ के अपने साथ बैठ के उसे एलैबोरेट करना कि यही क्यों लगा, इसकी फैमिली क्या है, राइट डाउन द फैमिली कॉर्ड्स. उसके बाद देखो कॉम्पोजिशन में, अगर आप इफ यू कवरिंग एनी कॉम्पोजिशन, तो उसमें पर्टिकुलर कॉर्ड्स क्यों लगे हुए हैं, कैसा फ्लेवर बनाते हैं, कैसा कलर बनाते हैं. मतलब हर एक कॉर्ड कलर का एक शिफ्ट है. कि जैसे इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट, जैसे सी मेजर स्केल है, ठीक है, 1, आई ट्रांजिट फ्रॉम 1 to 4, आई मेक इट माइनर एंड कमिंग बैक टू 1 अगेन. एक कलर याद हुआ. अब ये कलर जब 4 बार मैं किसी गाने में सुन लूंगा ना, तो मेरे को याद, एकदम याद हो जाएगा वो. So what did you do? Could you repeat? Yeah, I did like in C major scale. I was in हाँ. C major scale. So मैंने एक major chord दिया, C major chord. I transit Okay. to its fourth family. मतलब fourth में क्या आया? F major chord, है ना? Fourth, Yes. 1, 2, 3, 4, F. Yes. Fourth आ गया ना? And I made it minor from major, and I came back to C again. So what I did? होता है वो भी कर सकते हैं वो भी। तो एक कलर है उसका. तो हर एक कॉर्ड का कॉर्ड ट्रांजिट का एक इंटरवल का एक कलर है. सो व्हेन यू विल स्टार्ट रिमेम्बरिंग इट, तो वो अप्लाई भी होना शुरू हो जाएगा. अभी आपको टेक्निकली याद है चीजें, अभी आपको हाँ, exactly. वो टेक्निकली याद है, पर वो ऐसे फ्लो हाँ, मतलब बाय ईयर यू हैव टू रिमेम्बर इट. मतलब वो प्रैक्टिस कर करके आएगा कि प्रैक्टिसिंग मोर. सर अभी आपने ईयर F को minor कैसे लगाया। ट्रेन करे, लाइक ईयर को हम कैसे ट्रेन, ओके सॉरी. ओके, सर, मैं पूछ ईयर रहा था ट्रेनिंग अभी बेसिकली होता क्या है, पहले ईयर ट्रेनिंग को समझना पड़ेगा. ईयर ट्रेनिंग होता क्या है, ईयर को कैसे ट्रेन करें. सो ईयर ट्रेनिंग वर्क कैसे करता है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं. सो होता क्या है, व्हेन आई एम प्रैक्टिसिंग द थिंग्स, फॉर एग्जांपल एक यही कलर. अब जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरे कान में क्या हो रहा है, आई एम रिमेम्बरिंग इट, आई एम ऑब्जर्विंग इट. द मोर आई एम ऑब्जर्विंग इट, मोर आई एम लर्निंग इट. दिमाग में याद होता जा रहा है. अब जब उसको इतना आप सुन सुन के इतना ज्यादा आपको याद हो जाता है, फिर क्या होता है, फिर कनेक्टिविटी शुरू होती है ओरिजिनल सॉन्ग से. मतलब आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, एंड द सेम काइंड ऑफ कलर इफ यू लिसन टू सम इन सम अदर सॉन्ग, यू विल इमीडिएटली रिलेट, अरे ये तो वैसा ही था, सेम, अरे ये तो वही चीज है. वहां से ये ट्रेनिंग शुरू होता है. ये ट्रेनिंग कहाँ होता है, आपका लाइब्रेरी बिल्ड होता है. और जब बाहर से म्यूजिक आप सुनते हो, बेसिकली सारा सारा प्रोसेसिंग कहाँ होता है, माइंड में. आपकी फिंगर्स को भी कौन कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, आपका माइंड की प्ले दिस नोट, प्रेस सी विद फर्स्ट फिंगर, प्रेस डी विद, ये सारा इंस्ट्रक्शन ब्रेन से आ रहा होता है. एंड लिसनिंग भी कहाँ हो रही होती है, ईयर ट्रेनिंग जो सेकंड पार्ट है, यू आर लिसनिंग एंड प्लेइंग, दैट्स योर ईयर ट्रेनिंग. आप सुन के प्ले करते हो. तो व्हेन यू लिसन, आपका कान हाथ को नहीं बताता, आपका जो आप सुनते हो वो ब्रेन में जाके प्रोसेस होता है, एंड ब्रेन आंसर to your fingers, it commands your finger कि क्या 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 प्रेस करना है. So everything is processing here. तो अब आपका लाइब्रेरी आपने ऑलरेडी क्या प्रैक्टिस किया हुआ है, जब वो एक स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी बन जाता है, जैसे ही आप उसका रेफरेंस कहीं और सुनते हो उस टाइप का, तो योर ब्रेन गेट्स कनेक्टेड, वो उसको कनेक्ट करता है. एंड जब आप इंटरवल्स जानने लगते हो कि एक नोट से सबसे नियरेस्ट नोट, माइनर सेकंड का इंटरवल कैसा है, मेजर सेकंड का इंटरवल कैसा है, माइनर थर्ड का इंटरवल कैसा साउंड करता है, एंड इट्स डिफरेंट ना, माइनर थर्ड का इंटरवल एंड मेजर थर्ड का इंटरवल, हाँ जी. परफेक्ट फोर का. सो हर एक इंटरवल जब याद होता है, तो माइंड वहां से उस चीज को कंपेयर करता है, what you already learned and what you're listening are processed simultaneously at one time, and then you get connectivity. अच्छा ये तो वो है, और जिसको आप एग्जीक्यूट करते हो, दैट्स योर ईयर ट्रेनिंग. सो अब आप देखो, आप मेरे हिसाब से अभी ज्यादातर लोग डिक्शनरी पार्ट में भी बहुत ज्यादा, अब उनका लाइब्रेरी नहीं बना होता. तो सबसे पहले तो यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड देन लिसनिंग प्लेज अ लॉट ऑफ रोल. मतलब सर, तो इसमें टाइम कितना लगता है? every individual has different learning abilities. मतलब I'll not say कि it's not like a maths का syllabus है कि एक क्लास का मैथ्स का 8 चैप्टर का सिलेबस है, एंड मैं इतने दिन में पढ़ा दूंगा. मतलब you can understand, अगर मेरे पास 3 स्टूडेंट सीखने आते हैं, one student is practicing like 1 hour in a week, second one is practicing 1 hour daily, and third student is practicing like 4 hours daily. So after 1 month, क्या तीनों एक ही जगह पे मिलेंगे मुझे, या तीनों का स्पीड अलग हो गया होगा? ऑब्वियसली अलग होगा सर. अलग होगा. दूसरी चीज, हर एक का माइंड कैसा है. मतलब अगर इफ आई एम थ्रोइंग 100% नॉलेज, अब वो 100% आप कितना ग्रैब करते हो, यू आर टेकिंग 40% of it, you are taking 30% of it, you are taking like 70% of it, or you are taking exact 100% of it, or you are
गेटिंग 80% ऑफ इट, तो कितना परसेंटेज आप ग्रैब कर रहे हो। फिर थर्ड वर्क है कि उसको पोस्ट प्रोसेसिंग कितनी कर रहे हो, मतलब वंस यू ग्रैब इट एंड नाउ उसके साथ बैठ के आप वर्क कितना कर रहे हो, उसको खुद के माइंड में कितना एलैबोरेट कर रहे हो, कितना एक्सपैंड कर रहे हो उसके साथ, और कितना डीप खुद जा रहे हो, सेल्फ स्टडी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर लर्निंग टाइम, लर्निंग एबिलिटीज डिपेंड करती है। तो एवरीवन हैज डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज, आई कांट टेल यू कि किसको कितना टाइम लगने वाला है ये ट्रेनिंग में। सर मेरा एक डाउट है। यस सर मेरा ये डाउट है कि सर मैं जैसे कोई भी कॉर्ड पे कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए सी कर रहा हूँ, तो सर मेरे पहले तो मैंने किसी से सीखा नहीं था, तो मैंने 2 3 4 से प्ले कर सकता हूँ मेरे कॉर्ड। तो सर इसमें आगे क्या प्रॉब्लम आएगी सर? आगे मेरी सारी आदत रन्स लेने में प्रॉब्लम आएगी। इसको अगर एक्सपेंड करोगे जब तो फंस जाओगे, कितना करोगे वो फंस जाओगे सब कॉर्ड्स में। तो इफ यू आर यूजिंग द सर राइट, मेरे को सब कुछ अनलर्न करके वापस लर्न करना पड़ेगा ना? नहीं ऐसा कोई बिग डील नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। डोंट थिंक कि मुझे सारा अनलर्न करके, अनलर्न कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले तो यू कांट डिलीट एनीथिंग आउट ऑफ योर माइंड, मींस अनलर्न नहीं होता। अब यू लर्न डिफरेंट थिंग्स एंड ठीक है, आप पुरानी चीजों को प्रैक्टिस नहीं करते तो उनकी हैबिट से बाहर हो जाते हैं, बट अनलर्निंग नथिंग कॉल्ड योर अनलर्निंग काइंड ऑफ चीज, नहीं सर, मतलब। मेरी सारी कॉर्ड मेरी ऐसी आदत है सर, 2 3 हाँ 4 तो से प्ले करने की, सारी कॉर्ड, सारी की सारी उसको अब कॉर्ड। राइट वे में, उसको अब राइट वे में प्रैक्टिस करो। ओके सर। सर मैंने एक और डाउट है सर, पिछले क्लास में मैं कुछ सर डोरियन वर्ड सुन रहा था, मैं पूरी ध्यान से अटेंड तो नहीं कर पाया था क्लास में सर। वो पिछला लेसन का ओके एक ओके, रिकैप कब मिल पाएगा? अभी तो नहीं पाएगा। मैं ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेरी आई विल बी टेकिंग एंड आई विल एक्सप्लेनिंग द मोड्स एंड एक बार बता देता हूँ, एक बार मोड्स रिवाइज करा देता हूँ कि हाउ मोड थ्योरी वर्क्स लाइक, एंड दिस इज द लास्ट क्वेरी आई विल बी टेकिंग फॉर टुडे। सो बेसिकली होता क्या है, जैसे किसी भी मेजर स्केल को जब हम उसके रूट में प्ले कर रहे हैं, दिस इज द आयनियन मोड। कोई भी मेजर स्केल होता है, कोई भी। अब मैं इसी सी मेजर स्केल को प्लेइंग द नोट्स ऑफ द सी मेजर स्केल ओनली, बट फ्रॉम डी टू डी, दैट्स अ डोरियन, डी डोरियन स्केल, राइट? I'm playing the C major scale, notes of the C major scale only, but I'm playing it from D to D. That's your D Dorian scale. Now, if I play the same notes of C major scale from E to E, so this is a different combination. I'm playing the C major scale only, but the root has changed. It's from E. So it's E Phrygian, जैसे कि तो स्केल भी चेंज हो रही है सर, यहाँ पे तो ई माइनर से वो सी में ई माइनर हो जा रही है। क्या चीज? सर मैं बोल रहा हूँ कि सर इसमें तो स्केल भी चेंज हो जा रही है सर इसमें। हाँ तो स्केल ही है ना, दिस इज योर ई फ्रीजियन, वही बता रहा हूँ, मोड्स बता रहा हूँ। दिस इज नॉट योर ई माइनर, ई माइनर इज दिस इज योर ई नेचुरल माइनर, बट ई फ्रीजियन, दिस इज योर ई फ्रीजियन। सिमिलरली एफ टू एफ प्ले करूंगा सी मेजर स्केल को, सो दिस इज योर लीडियन मोड, राइट? एंड उसके बाद सेम जी टू जी प्ले करूंगा सी मेजर स्केल को, दिस इज योर मिक्सोलीडियन मोड। ए टू ए प्ले करूंगा, इट्स ए एओलियन मोड। एंड सेम सी मेजर स्केल को बी टू बी प्ले करूंगा, आई एम प्लेइंग द नोट्स फॉर सी मेजर स्केल ओनली, बट फ्रॉम बी टू बी, दिस इज बी लॉक्रियन एंड बैक टू आयनियन। So this is the modes thing. This is how we define the modes. Sir, when we change And- the scales तो भी ये डोरियन फिरिजियन वो ऐसे ही लाइन में रहता है? हाँ बिल्कुल exactly ऐसे लाइन में रहता है when we change the scale. Then Or also does the third like for C change sharp, according like for C sharp major scale, this is your Ionian mode. And if I play the same scale from your D sharp, the C sharp major scale, this is our D sharp Dorian. If I play the same C sharp major scale from its third node, it will be Phrygian. So it remains same for every major scale. But does the thirds change accordingly with the scales? What change? Third मतलब if you play C Ionian में तो फिर it is bilabial third, तो फिर वो Acha, I don't know. I'm not much aware about your Indian classical ragas. Very अच्छा, sorry. okay, okay. So I can't brief you with that. Sir, And that was all from my end. So I think sir, someone can you tell me a finger exercise please before going? just practice all major scales. I've already told briefed so many finger exercises right now.
Means Okay. you can play all the major scales, practice all major chords. I have told so many things. You can practice all Then just to increase the speed on keyboard. on the fingering for C major scale. Any scale, but how to increase the speed? Keep on practicing with start following the metronome. Play it with the slow metronome. Once you're able to get it on the slow metronome, increase it by 10 points, attempt it there, then again increase. If you're able to attempt it, increase it by 10 points again, and this way you can increase your speed. Means slowly increasing the metronome by 10 points. Take the help from the metronome. Okay, thank you. Okay. So thank you everyone, and Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. thank you everyone. Ishan, you can take it over and conclude the session, I believe. So bye from my side, and Ishan will take over from the front row to conclude it, I believe. Yeah, that's all. Thank you so much, Ikra. Yeah. Bye. Thanks, guys. Thank you.